علیکم ناظرین، روشنی ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نرم عادات سے محروم رہا وہ بھلائی سے محروم رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلوان وہ شخص نہیں جو لوگوں کو بچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہی شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ متحدہ ضلع میں جوش و خروش کے ساتھ دسہرہ تہوار کا انعقاد، بازار میں بڑے پیمانے پر سونا چاندی گاڑیوں کی خریداری، مختلف قائدین و عہدیداروں نے پیش کی عوام کو مبارکباد۔ ایم پی ڈی اروین فراڈ اور فیک فالس پی یو سی کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی، ایم پی اروین کی جانب سے دیے گئے بیان کی دبئی سے کی تردید۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہر سال کی طرح اس سال بھی تنظیم محفل درود شریف محفل ذکر کی جانب سے زیارت تبرکات کا 16 اکتوبر اور 17 اکتوبر کو انعقاد، عوام سے شرکت کی اپیل۔ وجے دشمی تہوار کے مدنظر متحدہ ضلع مرسی کے کویتا نے اپنے سسرالی گھر میں کی روایتی طور پر پوجا۔ حادثوں کی سڑک خلا روڈ حادثات کی روک تھام کے لیے بڑی گاڑیوں کی آمد و رفت پر پابندی عائد کرنا ضروری، عوامی نمائندوں قائدین دے توجہ۔ دی میسائل مین آف انڈیا، صدر جمہوریہ اے پی جے عبدالکلام کی یوم پیدائش پر روشن ٹی وی کی جانب سے خصوصی پیشکش۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ شہر کے پالی ٹیکنک میدان میں تلنگانہ جاگرتی کے زیر نگرانی منعقدہ آتش بازی کرتب پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر ایم ایل سی کے کویتا نے کی شرکت۔ ضلع نظام آباد کے پالی ٹیکنک میدان میں تلنگانہ جاگرتی کے زیر نگرانی منعقدہ آتش بازی کے کرتب تمام افراد کو تفریح فراہم کیا۔ اس پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر متحدہ ضلع نظام آباد ایم ایل سی کے کویتا نے شرکت کرتے ہوئے تلنگانہ جاگرتی سے وابستہ قائدین کی جانب سے فراہم کردہ خدمات کو قابل ستائش قرار دیتے ہوئے مبارکباد پیش کی۔ اس پروگرام میں تلنگانہ جاگرتی کے ضلع صدر اونتی، ریاستی قائدین، ضلع کے قائدین نے شرکت کی۔ ہندوستان کے چہیتے صدر جمہوریہ ہندوستان کو بین الاقوامی سطح پر سر بلندیوں تک پہنچانے والے، ہندوستان کے لیے میزائل ایجاد کرنے والے، اپنی غریبی کو ہتھیار بنا کر کامیابی حاصل کرنے والے دی میسائل مین آف انڈیا، ایکس پریزیڈنٹ آف انڈیا اے پی جے عبدالکلام کی یوم پیدائش پر روشن ٹی وی کی جانب سے خصوصی پیشکش۔ اے پی جے عبدالکلام نے ایروناٹیکل انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کی تھی۔ کیریئر کی کامیاب ابتدا انہوں نے وزارت دفاع کے ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ اینڈ پروڈکشن ڈائریکٹوریٹ سے کی۔ اس کے بعد وہ مسلسل ترقی کرتے چلے گئے۔ الٹرا سوئنگ ہدف کا نشانہ لگانے والے طیارے کا ڈیزائن تیار کرنے والے بھارت رتن اور سابق صدر ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام نے 2020 تک بھارت کو ترقی یافتہ بنانے کا خواب دیکھا اور اسے پورا کرنے کے لیے انہوں نے مسلسل محنت کی۔ ایئر کرافٹ اینڈ آرمامنٹ ٹیسٹنگ یونٹ کانپور میں AK-1 کے ورکنگ سسٹم کا تجزیے سے لے کر بنگلور سے ایروناٹیکل ڈیولپمنٹ اسٹیبلشمنٹ گراؤنڈ ایکوپمنٹ مشن کے روپ میں ملکی ہوور کرافٹ نندی ڈیزائن کر کے شروعاتی دور میں ہی انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا تعارف دے دیا تھا۔ ناسا میں راکٹ کی تنصیب سے وابستہ ٹیکنیکی ٹریننگ حاصل کر کے انہوں نے نائک اپاچے کا پہلا راکٹ چھوڑ کر اس برے صغیر کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ بھارت میں اسپیس پروگرام کے باوا آڈم ڈاکٹر وکرم سارا بھائی ان سے متاثر ہوئے اور خود سے کلام کا انٹرویو کر کے ان کی تقرری انڈین اسپیس ریسرچ کمیٹی میں راکٹ انجینئر کے عہدے پر کی۔ یہاں اے پی جے عبدالکلام نے زمین سے 400 کلومیٹر اونچائی والے مدار میں نصب کرنے کے لیے بھروسے مند لانچ وہیکل ڈیولپ کرنے کے لیے اس کے 4 مرحلوں کے لیے ایک راکٹ موٹر سسٹم اور ہائی ایس جی پروپیلنٹ کے استعمال میں اہل راکٹ موٹر سسٹم میں استعمال کے لیے 8.5 ٹن پروپیلنٹ گرین تیار کر کے ڈاکٹر وکرم سارا بھائی کے فیصلے کو صحیح ثابت کر دیا۔ اے پی جے عبدالکلام کی سخت محنت رنگ لائی اور 18 جولائی
जुलाई 1980 को सुबह 8:03 पर श्रीहरिकोटा रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर से SLV-3 ने कामयाब उड़ान भरी और इनका मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्क बनने की राह पर एक कदम और आगे बढ़ गया। इस इनकलाबी वाक़े के बाद भारत की अवाम ने इन्हें सराखों पर बिठा लिया। प्रोफेसर राजा रमन्ना ने डॉक्टर कलाम के सामने इंटीग्रेटेड गाइड मिसाइल प्रोग्राम को अपने हाथ में लेने की तजवीज रखी। फरवरी 1982 में DRDL का डायरेक्टर बनते ही डॉक्टर कलाम को इंटीग्रेटेड गाइड मिसाइल प्रोग्राम के तहत मुल्की मिसाइलों की तरक्की का जिम्मे सौंपा गया। इस बार भी भारत के नाम को आगे बढ़ाते हुए कलाम ने जमीन से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल सिस्टम पर पृथ्वी टेक्निकल कोरोहिकल मिसाइल, त्रिशूल जमीन से हवा में मार करने वाले डिफेंस सिस्टम, आकाश और टेक्नीशियन मिसाइल, नाक की तामीर को रफ्तार दी और अपने दिल में समाये ख्वाब को अग्नि नाम दिया। ये भारत के साइंस की तारीख में एक तारीखी वाकया था। 11 और 13 मई 1998 में राजस्थान के पोखरण में दूसरी बार 5 कामयाब एटमी टेस्ट करके इन्होंने इस वक्त के वजीर आजम अटल वाजपेयी के भारत को एटमी ताकत बनाने के ख्वाब को पूरा करके मुल्क को खुशी मनाने का एक मौका दे दिया। अपने इब्तिदाई दौर में ही लगन, मुसलसल मेहनत और मुश्किल हदफ पूरे करके इन्होंने हमेशा भारत की खिदमत की और दिल से इसके विकार का तहफ़्फ़ुज़ किया। आज ये अजीम शख्सियत हमारे बीच नहीं, लेकिन हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि भारत को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने का ख्वाब पूरा करने के लिए APJ अब्दुल कलाम ने अपनी कोशिशों में कोई कमी नहीं छोड़ी थी और विसाइल का रोना रोए बगैर इस सिमत में 80% कामयाब खुद ही पूरा कर दिया था। इनके नक्श कदम पर चलकर आगे का काम नई नस्ल को करना है। इसके लिए जरूरी है कि भारत की सियासत ऐसे बासलाहियत लोगों को मुसलसल कामयाब करने दे और इनके रास्ते में आने वाली हर रुकावट को दूर करे, वरना इस अजीम शख्सियत का ख्वाब पूरा होने में तवील अरसा लग सकता है। ऐसे में इनके ख्वाब को अपना ख्वाब बना लेना ही इनको सच्ची खिराज अकीदत होगी। जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी बानी महफिल दुरूद शरीफ व महफिल जिक्र हज़रत सैयद यूसुफुद्दीन क़ादरी चिश्ती अल रिफ़ाई की जानिब से ज़ियारत मुए मुबारक व तबरुकात का एहतिमाम, ख़वातीन के लिए 16 अक्टूबर व मर्द हजरात के लिए 17 अक्टूबर ज़ियारत का इनेकाद, आशिक़ान रसूल से शिरकत की अपील। बानी तंजीम महफिल दुरूद शरीफ व महफिल जिक्र मालापली निज़ामाबाद सैयद यूसुफुद्दीन क़ादरी चिश्ती अल रिफ़ाई खादिम आसार मुबारक की जानिब से आज एक सहाफ़ती नशिस्त का एहतिमाम करते हुए इन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर ज़ियारत मुए मुबारक व तबरुकात का एहतिमाम इनके मकान नज़द मालापली अर्बन हेल्थ सेंटर सुबह 10 बजे इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। खुसूसी ख़वातीन के लिए 16 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता सुबह 10 बजे इशा तक एहतिमाम किया गया। इसी तरह मर्द हजरात के लिए 17 अक्टूबर सुबह 10 बजे इशा तक ज़ियारत मुबारक का एहतिमाम किया गया है। इस मौके पर इन्होंने आशिक़ाने रसूल से गुजारिश की है कि वो बावजू होकर दुरूद शरीफ पढ़ते हुए बादब हाजिर होने की इन्होंने अवाम से की अपील। इस मौके पर असद साहब, डॉक्टर आसिम, आरिफ हुसैन, मोहम्मद सोहेल, मोहम्मद अख्तर पटेल साहब व दीगर मौजूद। तमाम आलम इस्लाम को जश्न ईद मुबारक, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेहद मुबारकबाद। हर साल की तरह इस साल भी महफिल दरूद और तंजीम ज़िक्र की जानिब से अज़ीम शान पैमाने पर ज़ियारत आसार मुबारक का एहतमाम किया गया है, जिसकी तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी है। कल बरोज़ हफ्ता 9 रबीउल अव्वल शरीफ 16 अक्टूबर सुबह 10:30 बजे से ख़वातीन के लिए इसका एहतमाम किया जाएगा इंशाअल्लाह, और सुबह 10:30 बजे से लेकर बाद नमाज इशा तक ये ज़ियारतें जारी रहेंगी। और 17 अक्टूबर 10 रबीउल अव्वल शरीफ को सुबह 10:30 बजे से मर्द हजरात के लिए भी ज़ियारतों का अहतमाम किया जा रहा है। और तमामी मर्द व ख़वातीन हजरात से अदबन गुजारिश की जाती है कि वह अपने अपने घरों से बावजू होकर रास्ता तमाम दरूद शरीफ पढ़ के ज़ियारतगाह में तशरीफ़ लाए। और 80 तबरुकात का इस बार एहतमाम किया गया है। इसकी ज़ियारतें करके अपने दिल को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए। और हमारा पता है कि पीला स्कूल अर्बन हेल्थ सेंटर नज़द इब्राहिम PUC कमेटी चेयरमैन आर्मन MLA जीवन रेड्डी ने दुबई से फेसबुक लाइव के जरिए MP डी अरविंद की जानिब से
عائد کردہ بیجا الزامات کی سخت مذمت کی۔ آرمو رکن اسمبلی پی یو سی کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی نے دبئی سے فیس بک لائیو کے ذریعے ایم پی ڈی اروند کی جانب سے کی گئی توہین آمیز ریمارکس پر سخت مذمت کی اور کہا کہ فیک بانڈ کے پیپر کے ذریعے ہلدی سے وابستہ کسانوں کو دھوکہ دینے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ ایم پی ڈی اروند فراڈ سرٹیفکیٹ کے ذریعے تعلیم حاصل کی اور فالس اسٹیٹمنٹس کے ذریعے بھولے بھالے عوام کو دھوکہ دیتے ہوئے انہیں غلط راہ دکھاتے ہوئے ان کی قیمتی زندگیوں سے کھلواڑ کرنے کی حرکت سے باز آ جانے کی تاکید کی اور بتایا کہ اگر دم ہے تو آرمی حلقہ اسمبلی سے مقابلہ کرنے کا چیلنج کیا۔ కూడా దసరా శుభాకాంక్షలు। మిస్టర్ నిజామాబాద్ ఎంపీ ఫాల్స్ ఫేక్ ఫ్రాడ్ ఎంపీ ధర్మపూర్ అరవింద్, నువ్వు ఏడీవి కాదు, కేడీ నంబర్ 1। నిన్నగాక మొన్న నందిపేటలో నువ్వు నన్ను దుబాయ్ వెళ్ళలేడు, రాలేడు, పోలేడు అని చెప్పినావు। ఫర్ యువర్ కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్, మిస్టర్ ఫేక్ ఎంపీ, ఫాల్స్ ఎంపీ, ఫ్రాడ్ ఎంపీ, ఐ మీన్ దుబాయ్। గతంలో నువ్వు ఎన్నికల సమయంలో ఈ ప్రాంత రైతులకు మీరు ఫేక్ బాండ్ పేపర్ మీద పసుపు తీసుకొస్తా, ఒకవేళ తీసుకురాని ఎడల నేను రాజీనామా చేసి ప్రజా ఉద్యమంలో, రైతుల ఉద్యమంలో, పసుపు ఉద్యమంలో పాల్గొంటా అని చెప్పినావు। ఈ రోజుకి 900 రోజులైంది। 2019 మార్చిలో నువ్వు రాసిచ్చిన బాండ్ పేపర్ అది ఫేక్ బాండ్ పేపర్ అయింది। నువ్వు ఫాల్స్ కమిట్మెంట్ అయినావు కాబట్టి యు ఆర్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ద లయర్ కాబట్టి। ईमान वाहिदियत सबसे अजीम नेमत है। तौहीद रिसालत आखिरत पर ईमान रखने से ही ईमान मुकम्मल होता है। किसी किस्म की कमी से इस्लाम से खारिज हो जाता है। फितनों की सरकोई के लिए मुत्तहिदा जदोजहद जरूरी। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत कामारेड्डी के ज़ेर एहतिमाम उलमा अफ़वाज़ व मुअज़्ज़िज़ शहरियान कामारेड्डी का इजलास से मुफ्ती इमरान खान क़ासमी का खिताब। उलमा व दीनी मजलिसों से दूर रहने वाले फितनों का जल्द शिकार होते हैं। मसाजिद के जिम्मेदार अपने मोहल्ले में रहने वाले तमाम अफराद को मस्जिद से वाबस्ता करें, फितनों का खात्मा होगा। मोहम्मद फेरोजुद्दीन, प्रेस सेक्रेटरी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ट्रस्ट कामारेड्डी की इत्तला के मुताबिक मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ट्रस्ट कामारेड्डी के ज़ेर एहतिमाम मस्जिद नूर इंदिरा नगर कॉलोनी कामारेड्डी में उलमा, आइमा, अफ़वाज़ व मुअज़्ज़िज़ शहरियान कामारेड्डी के इजलास से खिताब करते हुए मुफ्ती इमरान खान क़ासमी मबलग मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ट्रस्ट कामारेड्डी ने कहा कि उलमा का इस फितने के लिए खड़े होना ही इस बात की दलील है कि ये फितना खत्म होने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद जब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लामी बागडोर संभाला तो इस वक्त कहा कि मैं जिंदा रहूं और दीन में कमी हो जाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। झूठी नबुव्वत के दावेदार इस वक्त भी पैदा हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठे नबी के कत्ल करने पर मसरत का इजहार किया। हिंदुस्तान में कादियानी हो या अहमदी हो, शकील बिन हनीफ इसके चेले कॉलेजेस के तुलबा और तालीम याफ्ता अफराद को मुतासिर कर रहे थे। फिर गौहर शाही का फितना सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा है। जावेद कादियानियत का दूसरा एडिशन है। इत्तेहादी और इल्मी फितने हर जमाने में रुनुमा होते रहते हैं। अकामत दीन के नाम पर फितने का माहौल बनाया जा रहा है। नौजवान नस्ल इससे बहुत मुतासिर हो रही है। बीमारी की हालत में डॉक्टर से दूरी और फितनों के उलमा से दूरी ये नुकसानदा होती है। कुरान व हदीस का लेबल लगाकर लोगों को अपनी तरफ राग़िब करवाया जा रहा है और ईमान पर डाका डाला जा रहा है। बीमारी तंदुरुस्ती अल्लाह की तरफ से होती है। गुनहगारों पर बीमारी कफ़ारा सियात है, ना कि अज़ाब। नेक लोगों पर बीमारी रफ़ा दर्जात का जरिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमार को इलाज का हुक्म दिया, ख्वाह जिस्मानी हो या रूहानी। कई मुहद्दिसीन ने अबवाबुल तिब में कई अहादीस रसूल को जिक्र किया जिसमें इलाज करवाने की तरगीब दी गई है। ये दुनिया दारुल सबाब है। असबाब को इख्तियार करने का इंसान को मकलब बनाया गया है। कुरान में शिफा जरूर है मगर सिर्फ कुरान से शिफा का अकीदा ये दुरुस्त नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है कि कुरानी इलाज के साथ जिस्मानी इलाज में माहिर हकीम और डॉक्टर से करवाया जाएगा। इलाज करना तवक्कुल और अकीदे के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। अल्लाह के रसूल ने सहाबा को हुक्म दिया कि तुम अपनी बीमारी में इलाज करवाओ। इधर चंद बरस से फयाज का फितना सर
कर उभार रहा है। आम मुसलमानों को इलाज के नाम से गुमराह कर रहा है, ईमान को गारत कर रहा है। आज हमारी दीनी तालीमात से दूरी इन फितनों का शिकार बना रही है। फयाज कहता है कि दुआ करना गलत है। ये फयाज का नजरिया बिल्कुल तालीमात इस्लामी के खिलाफ है। नेज हाफिज मोहम्मद फहीमुद्दीन मुनीरी हफ्ज़ुल्लाह नाज़िम मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत ट्रस्ट कामरेड्डी ने कहा कि असल चीज ये है कि आज हम दुनिया में इतने मशगूल हो गए हैं कि अल्लाह का ध्यान, आखिरत का खौफ हमारे दिलों में से कम होता जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और अजमत की कमी से ही मुसलमान फितनों से मुतासिर होता है। लिहाजा जरूरत है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान से भी ज्यादा अजीज जाने और आपको अल्लाह का आखिरी नबी माने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए कि दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी 1000 जाने हो तो भी कुर्बान, लेकिन हम किसी गुस्ताख रसूल और दीन में कमी ज्यादती करने वाले को हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता होंगे तो ही हमारा ईमान बाकी रह सकता है, वरना हम गुमराहों के गढ़ों में गिरते रहेंगे। गुमराह फिरका व जमातें सबसे पहले बुजुर्गान दीन, फिर साहबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की तौहीन करते हैं, फिर नौज बिल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां, फिर इसके बाद मुरतद हो जाते हैं। आइमा कराम व खुतबा हज़रत को चाहिए कि वो जुमा के मिंबर के बातिल अकायद व नजरियात रखने वाले गुमराह फिरकों से मुतालिक आमतुल मुस्लिमीन को वाकिफ करवाए। दीनी हिम्मत रखने वालों को चाहिए कि बड़ी मुस्तकिल मिजाजी और संजीदगी के साथ इस पर उलमा कराम का साथ दे, उम्मत को इस फितने से आगाह करे, खवातीन से बात करवाए, गश्ती मुहिम चलाए, खवातीन के ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम मुनक़िद करे। हाफिज सऊद इमाम व खतीब मस्जिद तारवई की क़िरात कलाम पाक और हाफिज अबरार इमाम व खतीब मस्जिद एक्स रोड की नाते पाक से जलसे का आगाज हुआ, जबकि जलसे की कार्रवाई मौलाना मंजूर आलम मुजाहिरी मुंतजिम मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत ट्रस्ट कामरेड्डी ने चलाई। इस मौके पर मुफ्ती ख्वाजा शरीफ मुजाहिरी तर्जुमान मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत ट्रस्ट कामरेड्डी ने भी खिताब किया। सैयद अनवर साहब साबिक वाइस चेयरमैन मोतमिद मदीना मस्जिद ने फितना फयाजियत की सरकोही के लिए मुत्तहिदा जद्दोजहद के जरिए फितने के खात्मे के मुमकिन ताउन का तयक़ुन दिया। अलहाज सैयद अजमत अली जुम्मेदारान मस्जिद नूर, मोहम्मद सादिक, अब्दुल कदीर, अहमदुल्लाह, सोहेल नेजुल्मा, आयमा फाज मौलमीन की कसीर तादाद मौजूद थी। मोहम्मद जाकिर हुसैन रुकन तासीसी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत कामरेड्डी, मोहम्मद मोइजुल्लाह रुकन तासीसी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत कामरेड्डी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मस्जिद नूर इंदिरा नगर कॉलोनी कामारेड्डी में तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत के सिलसिले में एक इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें जनाब सैयद अनवर अहमद साहब, जनाब मोहम्मद जाकिर हुसैन साहब और इसी तरीके से कामारेड्डी के सियासी मजहबी कायदीन शरीक हुए इस मसले में कि फितने फयाजियत क्या है और इससे आम मुसलमानों को कैसे बचाया जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा इकराम ने पूरी बसीरत के साथ इस सिलसिले में अपने खिताब में अवामुन्नास को और उलमा को, हुफ़्फ़ाज़ को तरबियती बयानात जारी किए। ये फितना चूँकि बहुत संगीन है, इसके बहुत से अकायद इस्लाम से के खिलाफ है, लिहाजा इस सिलसिले में पूरे कामारेड्डी के अंदर काम करने के लिए हम सब मिलकर पूरी जद्दोजहद के साथ, पूरे इत्तेहाद के साथ तमाम मसलक से ताल्लुक़ रखने वालों को साथ लेकर, उनके साथ मिलकर इस फितने का सद्दबाब और फितने के खात्मे के सिलसिले में एक अहम मशवरा हुआ है। इंशाअल्लाह इस सिलसिले में कामारेड्डी के अंदर काम होगा। लिहाजा आमतुल मुस्लिमीन से सबसे गुजारिश की जाती है कि इस फितने की संगीनी को समझें और अपने अइम्मा से, अपने मौलमीन से और अपने उलमा से जुड़कर इस फितने के सिलसिले में मालूमात हासिल करें। और जहाँ जहाँ भी आपको मालूम हो कि इस फितने से लोग जुड़े हुए हैं, वो आप हम अहबाब तक इत्तला दें ताकि उनकी जहनसाजी की जा सके, उन मुतासिरीन से मुलाकात की जा सके। मस्जिद सरवत फातिमा बाबन साहब पहाड़ी सागर हिल्स निजामाबाद के लिए ताउन की जरूरत, अहले खैर हज़रात से आगे आने की अपील। शहर निजामाबाद के इलाके बाबन साहब पहाड़ी के पिछले हिस्से, जहां पर आबादी होने के बावजूद मस्जिद की कमी थी, जिसके चलते सत्तार खान की जानिब से एक वसी अराजी मस्जिद सरवत फातिमा के नाम से तामीर की जा रही है, जिसमें सत्तार खान व इनके अजीज व अकारिब के जानिब से माली इमदाद के जरिए मस्जिद की तामीर काम जारी है। इस मस्जिद के साथ साथ मुस्तकबिल दीनी मदारिस क़याम करने के लिए भी कोशिश जारी है। अहले खैर हज़रात से आगे बढ़ते हुए ताउन की अपील। सैयद अली से 99
66668542 नंबर पर रब्त करते हुए ताउन जमा कर सकते हैं। हादसों की सड़क खिला रोड बड़े गाड़ियों की आमदरफ्त के सबब हर साल कई हादसात, लेकिन अवामी नुमाइंदे व अहदेदार खामोश। अभी तक कई जाने के बावजूद कार्रवाई कुछ नहीं, अफसोस। शहर निजामाबाद की कई सड़क को हादसों की सड़क के तौर पर नाम दिया जा सकता है, तो वो शहर निजामाबाद की किला रोड है, जो एक जमाने में शहर की मरकजी सड़क हुआ करती थी, जहां से राजा महाराजा व हुकूमत के ओहदेदार गुजरते थे, और जो सड़क आज भी हर ईद व त्योहार में एक मरकजी हैसियत रखती है। इस सड़क पर टाकिस, 2 बैंक्स, 14 स्कूल कॉलेजेस मौजूद है, 7 फंक्शन हॉल, 4 से 5 गेस्ट हाउस, 2 हॉस्पिटल व शहर का अहम बाजार अहमदी बाजार भी सड़क पर मौजूद है। इसके बावजूद भी यहाँ हर रोज काफी बड़ी गाड़ियों के गुजरने के सबब हर साल कई हादसात होते हैं। कभी कभी तो लोग बच जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हादसात काफी खौफनाक रंग भी ले लेते हैं। ऐसे में ईद व त्योहार पर रोज सुबह व शाम के औक़ात में अवाम का हुजूम काफी बढ़ जाता है, जिसके सबब हादसों के इम्कानात में भी इजाफा हो जाता है। इस सड़क पर डिवाइडर्स की तामीर व इस सड़क पर बड़े गाड़ियों की आमदरफ्त को रोकने से हादसों की तादाद में कमी वाक़ होने का मुकामी अवाम ने इजहार किया। जमीयत उलमा अरशद मदनी सोन जिले निर्मल की मेंबर साजी मुहिम। जमीयत उलमा सोन निर्मल के सदर मुफ्ती नाजिम कासमी इमाम व खतीब मस्जिद मोहम्मदिया ने जमीयत की रुकनियत साजी मुहिम के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि मुल्क भर में चलाई जा रही जमीयत उलमा की मेंबर साजी मुहिम में मुसलमान बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। इन्होंने कहा कि जमीयत उलमा वो जमात है जिसने न सिर्फ हिंदुस्तान की आज़ादी में हिस्सा लिया, बल्कि इस मुल्क की तामीर व तरक्की, जमहूरियत की बका और इस तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो नुमाया खिदमात अंजाम दी जिसको तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकती। बिलखुसूस मुसलमान ने हिंद की हर नाजुक व पुराशुभ दौर में मुकम्मल रहनुमाई की हुकूमतों के सामने मिलत इस्लामी के मसाइल रखे, जो तारीख का नुमाया उन्वान है। इन्होंने तमाम हाजरीन मजलिस व इलाके के सभी मुसलमानों से अपील की कि वो जमीयत उलमा अरशद मदनी की तरफ से चल रही इस मेंबर साजी मुहिम में शरीक होकर अकाबिर की कायम करदा इस जमात को मुस्तहकम करे। इस मौके पर कमेटी सदर आरिफुद्दीन अबूद अब्दुल समी के अलावा अवामुल नास की कसीर तादाद मौजूद थी। ZP चेयरमैन विठल राव ने दशहरा त्यौहार के पेश नजर शहर के मुबारक नगर में वाक़ मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। ZP चेयरमैन विठल राव ने अपने अफराद खानदान के हमरा दशहरा त्यौहार के पेश नजर शहर के मुबारक नगर में वाक़ मशहूर मारूफ पेद्दमत अली मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देते हुए कहा कि बुराई पर अच्छाई की जीत और नाइंसाफी पर इंसाफ की फतह को दशहरा त्यौहार करार दिया। शहर के सुभाष नगर में वाक़ GDPL केसिक दफ्तर में मोटरसाइकिल गाड़ियों को साफ सफाई करके फूल मालाएं पहनाते हुए खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी गई। शहर के सुभाष नगर में वाक़ केसिक GDPL दफ्तर में दशहरा त्यौहार के पेश नजर मोटरसाइकिल गाड़ियों की शानदार पैमाने पर खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी गई। इस मौके पर तमाम मोटरसाइकिल गाड़ियों को साफ करके फूल मालाएं पहनाते हुए खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी गई। इस प्रोग्राम में राजेश्वर नेटवर्क डायरेक्टर राजेंद्र रेड्डी, राजेश रेड्डी, GDPL मेंबरान ने शिरकत की। बातजा जनरेटर की पूजा की गई। कमरपल्ली मंडल मौजे उपलूर के साकिन सुनकरी विजय कुमार की जानिब से तहरीर करदा बदकमा तेलंगाना अवाम का त्यौहार नामी किताब का मुकामी तहसीलदार व हेडमास्टर के हाथों रस्म इजराई अमल में लाई गई। कमरपल्ली मंडल उपलूर देहात से ताल्लुक रखने वाले सुनकरी विजय कुमार की जानिब से तहरीर करदा बदकमा तेलंगाना अवाम का त्यौहार नामी किताब को मुकामी तहसीलदार चोटापल्ली बावैया व हेडमास्टर गंगाधर ने रस्म इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर तहसीलदार ने इजहार ख्याल करते हुए पहले मरहले के तौर पर किताब के मुंसिफ विजय कुमार को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि त्यौहार तेलंगाना सकाफत की वाहिद तारीखी अलामत को किताब में तहरीर करते हुए किताब की शक्ल में अवाम के सामने लाने पर खुशी का इजहार किया। इस प्रोग्राम में डिप्टी तहसीलदार किशोर, मंडल के कन्वीनर प्रसाद, कोटापल्ली गंगाधर, अजय, लिंगामूर्ति, साजिद, अर्जुन, अनिल व दीगर ने शिरकत की। ముందుగా బతుకమ్మ పండుగ, దసరా పండుగ శుభాకాంక్షలు కమర్పల్లి మండల ప్రజలందరికీ కూడా. అయితే ఈ బతుకమ్మ పండుగ అనేది చారిత్రకంగా తీసుకుంటే ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఇది ఉన్నప్పటికీ
दशहरा त्यौहार के बाद अकामती तालीमी इदारों की कुशादगी। हुकूमत ने दशहरे के बाद अकामती तालीमी इदारों की कुशादगी और फिजिकल क्लासेस की मंजूरी दे दी है। वाज़ेह है कि रियासत में 1 सितंबर से तालीमी इदारों की कुशादगी हुई और फिजिकल क्लासेस का भी आगाज हो गया। ताहम हाई कोर्ट की हिदायत पर अकामती तालीमी इदारों की कुशादगी अमल में नहीं आई। इनके तुलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस जारी है। रियासत में कोरोना वबा कंट्रोल में आने के बाद महकमे तालीम ने अकामती तालीमी इदारों में फिजिकल क्लासेस की हुकूमत को तजावीज़ रवाना की थी, जिसको मंजूरी मिल गई है। अकामती तालीमी इदारों की सोसाइटीज ने दशहरा के बाद इन इदारों में फिजिकल क्लासेस की तैयारियां शुरू कर दी है। रियासत में SC, ST, BC और अखलती अकामती स्कूल्स व कॉलेजेस की तादाद 1000 से ज्यादा है, जिनमें 2.27 लाख तुलबा ज़ेरे तालीम है और ये तुलबा हॉस्टल्स में भी क़याम करते हैं। मरकजी हुकूमत का खुर्दीनी तेल के कस्टम ड्यूटी से दस्तबरदारी, फी लीटर तेल पर 15 रुपए कीमत कम होने का इम्कान, गरीब अवाम को राहत। आसमान को छूने वाली खुर्दीनी तेल की कीमतें कम होने का आसार नजर नहीं आ रहे। मरकजी हुकूमत की रिफाइंड ऑयल बिलखुसूस पाम, सनफ्लावर, सोयाबीन जैसे तेलों पर मरकजी हुकूमत ने बेसिक कस्टम्स टैक्स से दस्तबरदारी अख्तियार कर ली है। हुकूमत के इस फैसले पर 14 अक्टूबर से 3 मार्च 2022 तक अमल आवरी होगी। एक तरफ कोरोना बहरान, दूसरी तरफ लॉकडाउन की वजह से अशियाई जरूरिया बिलखुसूस खुर्दीनी तेल, पकवान में इस्तेमाल होने वाले तेलों की कीमत में बेतहाशा इजाफा हो गया था, जिससे गरीब और मुतवस्सित तबके पर इजाफी बोझ आयद हो गया था। मरकजी हुकूमत ने त्योहारों के सीजन को पेश नजर रखते हुए ये फैसला किया है। तेल की सनतों से मुतालिक एसोसिएशन SEA ने मरकजी हुकूमत के फैसले पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि इस फैसले से खुर्दीनी तेलों की कीमत में फी लीटर 15 रुपए कमी होने के इम्कानात है, जो गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए राहत की बात है। जारिया साल कोरोना की दूसरी लहर के दौरान खुर्दीनी तेलों की कीमत आसमान को छू रही थी। SEA के कारगुजार डायरेक्टर BV मेहता ने कहा कि त्योहारों की सीजन में मरकजी हुकूमत ने खुर्दीनी तेलों की कीमत में कमी करते हुए मरकजी हुकूमत ने गरीब अवाम को राहत फराहम की है, मगर इसका बोझ किसानों पर पड़ सकता है। फैसला करने के लिए सही वक्त नहीं है। सोयाबीन पैदावार का अभी भी आगाज हुआ है। फीस रीइंबर्समेंट की अदम इजराई, कॉलेजेस का सर्टिफिकेट देने से इनकार, M.Tech और M फार्मेसी काउंसलिंग में हिस्सा लेने वाले तुलबा परेशान, काउंसलिंग की आखिरी तारीख में तौसी का इम्कान। PG इंजीनियरिंग इंट्रेंस टेस्ट PGE सेट में रैंक्स हासिल करने वाले तुलबा काउंसलिंग में हिस्सा लेने के मामले में उलझन का शिकार है। काउंसलिंग में शिरकत करने के लिए B.Tech, B फार्मेसी की TC मेमोरेंडम ऑफ मार्क्स की जरूरत होती है। हुकूमत की जानिब से फी रीइंबर्समेंट की अदम इजराई से कॉलेजेस की इंतजामिया सर्टिफिकेट्स जारी करने से साफ इनकार कर रहे हैं, जिस पर तुलबा PG सेट के मरकज को फोन करके मसाइल की यकसवी करने का मुतालबा कर रहे हैं। चंद तुलबा कर्ज हासिल करते हुए कॉलेजेस की बकाया जात फीस अदा करते हुए सर्टिफिकेट्स हासिल कर रहे हैं। गरीब तुलबा काफी परेशान है। PGE सेट काउंसलिंग का 4 अक्टूबर को आगाज हुआ है। तुलबा को 18 अक्टूबर तक अपने इंसदाद को पोर्टल में अपलोड करने की हिदायत दी गई है। PGE सेट में 16,582 तुलबा क्वालिफाई हुए हैं। रियासत में 12,000 तक M.Tech और M फार्मेसी की नशिस्तें हैं, जिस पर 80% यानी 9,600 नशिस्तें कन्विज कोटे में दस्तियाब है। काउंसलिंग के आगाज की 8 दिन मुकम्मल होने के बावजूद पीर तक 2,500 तुलबा ने अपने इंसदाद को पोर्टल में अपलोड किया है, जिनमें तकरीबन 2,000 तुलबा गुज़िश्ता साल 2020 में क्वालिफाई हुए थे। इससे अंदाजा होता है रवा साल कामयाब होने वाले तुलबा सर्टिफिकेट्स की इजराई का इंतजार कर रहे हैं। इस मसले पर इंजीनियरिंग कॉलेजेस की इंतजामिया तंजीम के नुमाइंदे सुनील से रब्त पैदा किया गया तो इन्होंने कहा कि तुलबा को परेशान करने का कोई इरादा नहीं है, कम अज कम फाइनल ईयर के तुलबा की फीस हुकूमत जारी कर दे। PGE सेट इंटरेस्ट के कन्वेज रमेश बाबू ने बताया कि इस मसले पर इन्हें तुलबा से बड़े पैमाने पर फोन कॉल्स वसूल हो रहे हैं। कॉलेजेस इंतजामिया के इस रवैये पर तेलंगाना हायर एजुकेशन काउंसिल से तबादले ख्याल करते हुए काउंसलिंग की तारीख में तौसी कराई जाएगी। फाखा कशी के आलमी इंडेक्स में हिंदुस्तान का 101वां नंबर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स आज जारी किया गया, जिसके मुताबिक 116 ममालिक में हिंदुस्तान का नंबर 101 है। हिंदुस्तान का शुमार इन 31 ममालिक में भी होता है जहां फाका कशी को संगीन मसला करार दिया गया है। गुज़िश्ता साल जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107 ममालिक की फहरिस्त में हिंदुस्तान का नंबर 94 था। फाका कशी के मामले में सिर्फ 15 ममालिक हिंदुस्तान से पीछे है। पड़ोसी मुल्कों में पाकिस्तान का नंबर 92 है, जबकि नेपाल का 76 और बांग्लादेश का नंबर भी 76 है।
है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया भर में खास तौर पर दुनिया के 47 ममालिक 2030 तक भी फाका कशी पर काबू पाने में नाकाम होंगे। जिले कामरेड्डी जुक्कल निजाम सागर मंडल नरसिंह राव पल्ली के मुस्तखर 161 शाहरा पर मोटरसाइकिल व लॉरी के तसादुम से 2 अफराद बरसर मौके हलाक। जिले कामरेड्डी जुक्कल निजाम सागर मंडल नरसिंह राव पल्ली के मुस्तखर पर वाक़ई 116 शाहरा पर मोटरसाइकिल व लॉरी का तसादुम होने पर वेलगानूर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अफराद बरसरे मौके हलाक हो गए। तफसीलात कुछ इस तरह से। दशहरा त्यौहार के पेश नज़र बकरे की खरीदी करने के लिए पिटलम जाकर आने के दौरान शाहरा पर पेश आए हादसे में एक मस्जिद से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद फौत होने पर गाँव में गम की लहर दौड़ गई। भीमगल एमपीडीओ ऑफिस के मैदान में बॉक्सिंग एकेडमी का क़याम अमल में लाया गया। भीमगल मंडल के मुकाम पर सीआई श्रीधर रेड्डी व एसआई प्रभाकर के हाथों एमपीडीओ ऑफिस मैदान में क़याम अमल में लाए गए बॉक्सिंग एकेडमी का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर श्रीधर रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि भीमगल मंडल में बॉक्सिंग एकेडमी को कायम करने पर तमाम पुलिस मुलाजमीन की जानिब से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि हर एक नौजवान 1 घंटा मुख्तस करते हुए बॉक्सिंग के गुण सीखने पर इसका सेहत पर अच्छा असर होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बॉक्सिंग कोच संजीव कन्नूर, बाबापुर नायब सरपंच अतीक, सुमन, गंगाधर, टीआरएस यूथ लीडर एम प्रशांत, चिंटू, क्रांति, निखिल व दीगर ने शिरकत की। జరిగినాయి కానీ మన పాపులేషన్ పోల్చుకుంటే వరల్డ్లో మనం సెకండ్ పాపులేషన్ మనది. కానీ మనకి తిప్పి కొడితే దాదాపు ఒక 10-15 మెడల్స్ వచ్చినాయి అన్నీ కలిపి. కానీ మనకి యాక్చువల్గా అందరికంటే మనం ముందుండాలి. మనది ఇండియా బాగా అంటే స్పోర్ట్స్ విషయంలో బాగా వీక్నెస్ అంటే మనం చదువుకుంటాం కానీ చదువులో మనం టాప్ ఉంటాము ఎప్పుడు. మన వరల్డ్లో అన్ని సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలు కానీ ఏదైనా ఇంకా ప్రతి దాంట్లో కూడా మనం టాపే ఉంటాం. కానీ ఈ दशहरा त्यौहार के मद्देनजर सोने व चांदी के कारोबार उरूज पर बाजार में अवाम खरीदारी में मसरूफ। ताजिरों की जानिब से मुख्तलिफ ऑफर्स का ऐलान। जिले में दशहरा त्यौहार के पेश नजर अवाम की भारी तादाद ने सोने के जेवरात खरीदने के लिए दिलचस्पी दिखाई, क्योंकि इनके अपने अकीदे के मुताबिक दशहरा त्यौहार के दिन सोने की खरीदी को नेक सौगात माना जाता है। इसलिए अवाम की कसीर तादाद दशहरा त्यौहार के मौके पर सोने चांदी के दुकानात पर खरीदारी करते हुए नजर आए। बदकमो दशहरा त्यौहार के पेश नजर फराहम करदा तातीलात से आरटीसी की आमदनी में बेतहाशा इजाफा। बदकमा दशहरा त्यौहार के पेश नज़र तुलबा को तातीलात मिलने पर तुलबा मुलाजमीन इनके अपने घर रवाना होने पर आरटीसी की आमदनी में बेतहाशा इजाफा हो गया। गुज़िश्ता साल कोरोना वबा के बाइस आरटीसी खसारे में मुब्तला होने पर हुकूमत तेलंगाना पर इसका गहरा असर दिखाई दिया और गुज़िश्ता 2 महीने से कोरोना केसेस में कमी आने पर हुकूमत की जानिब से आयद करदा उसूलों के तहत आरटीसी को फायदा हासिल हो रहा है। इसी तरह से रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजरेड्डी गोवर्धन का आरटीसी के रियासती चेयरमैन के ऐसे से ओहदे का जायजा लेने पर आरटीसी तरक्की की जानिब गामजान होने का इजहार किया। दशहरा त्यौहार के पेश नजर मिलसी के कविता ने अपने अरकान खानदान के हमरा अपने ससुराल के मकान पहुंचकर मोटरसाइकिल, गाड़ियों व हथियारों की खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। मुत्तहदा जिले निजामाबाद एमएलसी के कविता ने दशहरा त्यौहार के पेश नज़र इनके अपने अरकान खानदान के हमरा अपने ससुराल के मकान पहुंचकर मोटरसाइकिल, गाड़ियों व हथियार की खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देते हुए कहा कि दशहरा त्यौहार को दरअसल बुराई पर अच्छाई की फतह को मनाने का इजहार किया। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के अहम सिलसिले पर। मुत्तहदा जिले में जोश खरोश के साथ दशहरा त्यौहार का इनेकाद, बाजार में बड़े पैमाने पर सोना चांदी गाड़ियों की खरीदारी, मुख्तलिफ कायदीन व अहदेदारों ने पेश की अवाम को मुबारकबाद। एमपी डी अरविंद फ्रॉड और फेक फॉल्स पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी एमपी अरविंद की जानिब से दिए गए बयान की दुबई से की तरदीद। जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी तंजीम महफिल दुरूद शरीफ महफिल जिक्र की जानिब से जियारत तबरुकात का 16 अक्टूबर और 17 अक्टूबर को इनेकाद, अवाम से शिरकत की अपील।
विजय दशमी त्यौहार के मद्देनजर मुत्तहदा जिले एमएलसी के कविता ने अपने ससुराली घर में की रुवायती तौर पर पूजा। हादसों की सड़क खिला रोड हादसात की रोकथाम के लिए बड़ी गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त पर पाबंदी आयद करना जरूरी, अवामी नुमाइंदों कायदीन दे तवज्जो। द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया सदर जमहूरिया APJ अब्दुल कलाम की यौम पैदाइश पर रोशन टीवी की जानिब से खुसूसी पेशकश। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज।